Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying class 10th maths chapter 2 polynomials. In our previous class we discussed that what is a polynomial and I hope it is very much clear to you. Today we are going to learn about zero of a polynomial and then accordingly we will be doing exercise 2.1 also. Before we learn that what is a zero of a polynomial, first we understand what is the value of a polynomial for some given value of x. Suppose we have a polynomial p of x in variable x, and if we now replace this variable x by any number, say k, then we get some value of the polynomial and it is denoted by p of k, where we are replacing x by k. We take this example, then it will be clear to you. Suppose we have this polynomial p of x equal to x square minus 3x minus 4. If we take x equal to 2, then we will replace x by 2. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम उसकी जगह पर नंबर रख रहे हैं, यहाँ पर 2. तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2. 3x मीन्स 3 इंटू x और x की जगह अब हमने 2 ले लिया, माइनस 4. नाउ सिंप्लीफाई, इट विल बी 4 minus 6 minus 4. 4 minus 4 will get cancelled and it is minus 6. So what we are seeing, that when we replace x by 2, the value of the polynomial is now minus 6. हमने x की जगह 2 रख दिया अगर polynomial में, तो polynomial की value हमें कितनी मिल रही है, minus 6. इसी तरह से अगर हम x की जगह minus 3 replace करें तो क्या मिलेगा हमें, हमारा पॉलिनोमियल है p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. अब हम x की जगह माइनस 3 रिप्लेस कर रहे हैं और अब हमें नई वैल्यू मिलने वाली है पॉलिनोमियल की इस तरह से. आप देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम माइनस 3 रिप्लेस कर रहे हैं. यहाँ x की जगह माइनस 3, यहाँ x की जगह माइनस 3. इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस होके हमें मिलेगा 9. फिर से यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4. इट इज़ 18 माइनस 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 14. तो अब आप देखिए जब हमने x इक्वल टू माइनस 3 रिप्लेस कर दिया x की जगह, तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 14. So these are the values of the polynomial for some given value of x. Clear? We take few more numbers. We again find the value of the polynomial, this same polynomial at x equal to minus 1 and x equal to 4. And then let us see what we get. P of x is x square minus 3x minus 4. अब हम x की जगह माइनस 1 रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4. इट विल बी 1 प्लस 3 माइनस 4. You will get it equal to 0. Then let us put in the value of x as 4. P of 4, it will be 4 square minus 3 into 4 माइनस 4. यहाँ जहाँ पर भी x है हमने उसकी जगह 4 रिप्लेस कर दिया है. दिस विल बी 4 स्क्वायर इज 16, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4. 16 minus 12 minus 4 is again minus 16 and it is coming out to be 0. Now just pay attention at these two figures. When we are placing x as minus 1, we are getting the value of the polynomial as 0. P of minus 1 is 0. Again when we are replacing x by 4, we are getting the value of the polynomial as 0. This means P of 4 is again 0. These numbers, these minus 1 and 4, these numbers or these values of x, when they are placed in the polynomial, the value of the polynomial is turning out to be 0. जब हम ये numbers polynomial में x की जगह पर रख रहे हैं तो polynomial की value 0 हो रही है
और ऐसी वैल्यूज़ x की, इन्हें हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। व्हाट इज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k is 0. You can see here p of k means here p of minus 1 is 0 and here p of 4 is 0. So these two numbers minus 1 and 4, they are called the zero of this particular polynomial which we are taking in this example. ठीक है, Now how do we find the zero of any given polynomial? हम कैसे कोई polynomial दिया हो तो उसका ज़ीरो कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो है कि पॉलिनोमियल में बहुत सारी वैल्यूज़ x की रखते जाइए और जब हमें ज़ीरो मिले तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कितनी वैल्यूज़ पुट इन करेंगे? उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? वी सॉल्व द इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो। हम जो पॉलिनोमियल दिया है उसका हमें ज़ीरो निकालना है तो उसको ज़ीरो के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाते हैं और फिर इजीली हम उसका ज़ीरो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ पॉलिनोमियल से f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड इट्स ज़ीरो, तो कैसे निकालेंगे? इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दीजिए, यू विल गेट x इक्वल टू -5। ये हो गया इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो, बिकॉज इफ़ आई रिप्लेस x बाय -5, सपोज x की जगह यहाँ पर -5 रिप्लेस करें तो -5 प्लस 5 इज़ ज़ीरो। तो हम क्या देख रहे हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं? जो पॉलिनोमियल दिया है उसको ज़ीरो के इक्वल रखने से हमें इजीली x की वो वैल्यू मिल जाती है जो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल? वी डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस क्लास। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 1, दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देखेंगे x की डिग्री 1 है और इसका पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा? हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल निकालने के लिए उसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, तो इस पॉलिनोमियल को भी ज़ीरो के इक्वल रखते हैं अगर, तो हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। x इक्वल टू b इधर जाके -b और फिर ये a यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस इज़ द ज़ीरो of this particular given linear polynomial. So we say a linear polynomial p of x equal to ax plus b. Remember a should not be equal to 0. अगर a 0 हो गया तो ये linear polynomial रहेगा ही नहीं, फिर तो सिर्फ ये constant ही बचेगा। It has only one zero k and it is given by -b upon a. देख लीजिए कैसे निकाला है, इसको 0 के इक्वल रख के easily हम ये 0 फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। इट विल बी -b बाय a। अब b क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आप देखिए ये कांस्टेंट टर्म है विदाउट द वेरिएबल, सो -b मीन्स माइनस द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यू कैन सी फ्रॉम हियर, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है a, वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। So what we are getting is the zero of a linear polynomial is -b by a. It is equal to minus the constant term upon coefficient of x. Suppose we take one example, 5x plus 4. ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब हम इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? इसको इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं। इससे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 इधर राइट साइड में ट्रांसपोर्ट्स करने पे -4 और 5 विल बी इन द डिवीजन। तो आप देखिए इट इज़ इक्वल टू -b अपॉन a। अगर ये ax प्लस b फॉर्म में लें हम तो b की वैल्यू कितनी है? -4। b की वैल्यू 4 और -b हो गया -4 और a की वैल्यू हो गई 5, तो इट इज़ -b बाय a। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो उसके कोफिशिएंट से इस तरह से लिंक्ड है। तो क्या ऐसा ही कोई रिलेशन
कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के बीच में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है या नहीं होता है, वो हम धीरे धीरे आगे चलकर डिस्कस करेंगे. Now first we have learned that zero of a polynomial is that value of variable x which on replacing x gives us the value of the polynomial as 0. Okay, now we will talk about the geometrical meaning of zero of a polynomial. Geometrical meaning में हम ये देखना चाहेंगे कि जिसे हम ज़ीरो कह रहे हैं वो एक्चुअली कैसे प्रेजेंट हो रहा है. उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा. जो भी पॉलिनोमियल जो हम डिस्कस करेंगे वी विल हैव टू प्लॉट इट्स ग्राफ, और फिर ग्राफ में हम देखेंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से हमारा मतलब क्या है. और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता है, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, एंड वी अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर इट. फॉर अ पॉलिनोमियल y इक्वल टू p of x, we draw one x axis, one y axis. This is x, this is x dash, y and y dash. इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. फिर आपके डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x लेनी होंगी. हम x एक्सिस पे ही लेंगे, ये ओरिजिन हो गया. डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. जैसे अभी हमने x की अलग अलग वैल्यूज़ ली थी तो वो हम किस पे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे. और y एक्सिस पे हम लेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू. जो वैल्यू x की रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ निकल रही थी वो सारी y एक्सिस पे आएंगी. तो y एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे p ऑफ x को. देन वी विल फाइंड वेरियस, वी विल टेक ऑन वेरियस वैल्यूज़ ऑफ x. हम x के अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंगली हम y की या कह लीजिए p ऑफ x की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसको y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. देन प्लॉट द पॉइंट्स x एंड y ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया जो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स x की वैल्यूज़ और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ आएंगी उनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे. और फिर जब ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, सो वी विल गेट द कर्व or the graph of the polynomial. So we will discuss about the geometrical meaning of zeros of a polynomial by plotting its graph of the polynomial. First we take on a linear polynomial. Graph of a linear polynomial. We know that a linear polynomial is of the form ax plus b where a is not equal to 0, and the graph of a linear polynomial is a straight line. That is why it is called a linear polynomial. देखिए आप, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो x एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -b/a and 0. And remember, this -b/a is nothing but the zero of a linear polynomial that we have just now discussed. Now we try to take one example and then understand it. Suppose we have this linear polynomial y equal to 2x plus 3. ये एक linear polynomial है हमारे पास और अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. उसके लिए हम x की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी. Suppose we take on 2 in place of x. तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 plus 3. पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड करेंगे. बॉडमास रूल पता है ना आपको, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन. तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ 4 प्लस 3 इट इज़ 7. नेक्स्ट वी टेक ऑन द वैल्यू 0. तो ये हो गया 2 into 0 प्लस 3. तो ये तो 0 हो गया. 0 plus 3 is, we take on one more value. Suppose we take on -2. So y is equal to 2x plus 3. 2 into -2 plus 3. It will be equal to -4 plus 3 equal to -1. ये हमने x की वैल्यूज़ ले ली और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ मिल गई हमें. तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हो गए. पहला पॉइंट हो गया 2,7. फर्स्ट वन वी टेक x coordinate and the other one as y coordinate. Then we have 0, 3 and then we have -2, -1.
ये तीनों पॉइंट्स मिल गए हमें। याद कीजिए हमने बात की थी कि पहले हम x की अलग अलग वैल्यूज़ अज्यूम करेंगे, जो हमने कर ली है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y या पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं और हमें वो पॉइंट्स मिल गए जो हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। और जब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। दिस इज़ द पॉइंट 2,7, then this is 0, 3 and this is -2, -1. These 3 points which we have just now discussed. और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे then you will get one straight line and this is the graph of y equal to 2x plus 3. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट, इस पर फोकस कीजिए। ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3/2, 0। और -3/2 क्या होगा? जस्ट रिकॉल इफ वी हैव द पॉलिनोमियल एज y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है? इट इज़ -b/a, हमने अभी बात की थी। और -b मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर है 3, तो -3 और a क्या है? x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है 2, तो -3/2। तो आप देखिए जो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है एक्चुअली ये और कुछ नहीं बल्कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ या स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर से देखते हैं, जो ज़ीरो है पॉलिनोमियल का, इट इज़ एक्चुअली द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। क्लियर? तो ज़ीरो जो है उस पॉइंट से कनेक्टेड है जिस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। और आप देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही ज़ीरो होगा क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, तो एक ही ज़ीरो है। और ये इसकी जो लाइन है वो भी x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जितने ज़ीरो हैं उतना ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन अदर वर्ड्स जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उतने ही ज़ीरो हैं। अभी हम इसको और एक्सटेंड करेंगे डिस्कशन को, जैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। वी नेक्स्ट टेक ऑन ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। We have this example again how we will plot its graph। x की वैल्यूज़ आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम करते जाइएगा और फिर करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। आप x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, तो कई सारी वैल्यूज़ आप ले करके इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हम अगर वैल्यूज़ लें तो कुछ इस तरह की टेबल हमें मिलेगी। आप देखिए x की ये सारी वैल्यूज़ पुट इन करने पर करस्पॉन्डिंगली हमें y की ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। और अब हम जब कार्टेशियन प्लेन पे इनको प्लॉट करेंगे x एक्सिस y एक्सिस लेकर के, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ की क्या खासियत है आप देखिए, इट हैज़ ओनली 1 सिंगल टर्न। यहाँ पर ये टर्न ले रहा है, इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पर एक टर्न ले रहा है और इस तरह का ये एक फिगर बन रहा है। इस फिगर को हम कहेंगे पैराबोला, इसे हम पैराबोला कहते हैं। इस तरह की शेप के ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं, इस कर्व को। और आप देखिए इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, एक तो यहाँ पर और एक ये 2 पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, y इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। अभी हमने जब एग्जाम्पल में बात की थी तो उसमें आपने देखा था कि p ऑफ -1 भी 0 आ रहा था और p ऑफ 4 भी 0 आ रहा था। आप कनेक्ट कर सकते हैं पीछे की स्लाइड से, ये दोनों पॉइंट्स पे 0 आ रहे थे। और ये क्या है एक्चुअली, x कोऑर्डिनेट है उन पॉइंट्स के जिन पॉइंट्स पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं -1 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है,
4 रखने से पॉलिनोमियल की 0 आ रही है वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, it is nothing but that point at which the graph is intersecting the x axis and it is actually its x coordinate। ठीक है, और इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 है, उनका ग्राफ पैराबोला शेप का होता है। दिस इज दैट पर्टिकुलर कर्व विच इज कॉल्ड अ पैराबोला। अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, हम देख लेते हैं। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, अगेन रिमेंबर a should not be 0 in case of a quadratic polynomial here. The graph is a curve called parabola। ठीक है, और अब ये पैराबोला भी दो तरह के हो सकते हैं, इन दिस वे opening upwards or in this way opening downwards. It opens upwards like this one if a is greater than 0. What is a? It is the coefficient of x²। अगर x² का कोफिशिएंट greater than 0 है, means पॉजिटिव है, तब आपका पैराबोला ऊपर की तरफ it opens upwards। और अगर a is smaller than 0, this means that the coefficient of x² is negative, less than 0 मतलब नेगेटिव, तब पैराबोला जो है नीचे की तरफ ओपनिंग रहेगी उसकी। इट विल ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग 3 केसेस। देयर आर एक्चुअली 3 केसेस इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द फर्स्ट वन? द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 अलग अलग पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे। जैसे अभी हमने देखा था कि ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे पैराबोला जो है कट कर रहा है। तो ऐसे केस में व्हाट वी गेट, द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a and a'। वी कैन नेम देम एज a and a'। आप यहाँ पर इनको नाम दे सकते हैं, दिस बी a and दिस बी a'। ठीक है, देन what else? The x coordinates of these points are the 2 zeros of the polynomial ax² + bx + c। अभी हमने बात की थी कि इनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 4, ये और कुछ नहीं बल्कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये देखिए आप, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं कि जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इन पॉइंट्स के, जिन पॉइंट्स पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। दे आर द 2 zeros and here the polynomial ax² + bx + c is factorizable into 2 distinct linear factors। अगर आप इनके फैक्टर्स करें तो 2 अलग अलग फैक्टर्स मिलेंगे और फिर उनसे आपको 2 zeros, distinct zeros मिल जाएंगे। We have these 2 examples। Suppose we take on this second one, it is x² - 2x - 8। अगर हम इसके फैक्टर्स करना चाहें तो कैसे करते हैं? मिड टर्म स्प्लिट करके करते हैं। 8 के फैक्टर्स, इट इज 4 × 2 8, और वी कैन टेक देम एज x - 4 x + 2। दीज विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 2 लीनियर फैक्टर्स हो गए, पहला लीनियर फैक्टर, दूसरा लीनियर फैक्टर। तो अब आप जब इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो एक तो 0 आ जाएगा 4, क्योंकि 4 - 4 रखने पे ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और दूसरा 0 आपको मिलेगा -2, क्योंकि यहाँ पर -2 + 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? x की वो वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब मेरे पास यहाँ इसके लीनियर फैक्टर्स हो गए। अगर मैं x की जगह 4 रखें हम, तो ये 4 - 4 0 हो गया, इसका मतलब 4 इसका एक 0 है। और अगर हम x की जगह -2 रखें तब भी तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट जीरोज हैं, 4 और -2। और अब अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, और वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे? एक तो होगा 4, 0 और दूसरा होगा -2, 0। समझ में आ रही है आपको बात? अब आप यहाँ देखेंगे x² का कोफिशिएंट
कुछ नहीं है यानी 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, नेगेटिव है, लेस देन 0, तो इसका पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। समझ में आ रही है आपको बात? और अगर आप इसके भी फैक्टर्स करें तो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स मिलेंगे, उनसे आपको 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे और 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे उन ज़ीरोज़ से, वो 2 पॉइंट्स जहाँ पर इनका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। इफ़ वी ड्रॉ, you can draw it by taking different values of x and then correspondingly taking different values of the polynomial p of x which will be equal to y। आप प्लॉट करके चेक भी कर सकते हैं। तो एक रफ आइडिया जो बनेगा इस केस में, इस तरह के पैराबोलास बनेंगे जो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। एक तो पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ये it is opening downwards, so here a will be less than 0, a is the coefficient of x square। Here also there are 2 distinct points at which the graph is intersecting the x axis, तो 2 zeros हो गए, 2 distinct zeros हो गए। और यहाँ पर क्योंकि it's opening upwards, so a is greater than 0, a is the coefficient of x square। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़। तो कनेक्शन है ज़ीरोज़ में और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, दोनों का नंबर सेम होगा। एक्चुअली दे बोथ रिप्रेजेंट वन थिंग। वी टेक ऑन द सेकेंड केस in case of quadratic polynomial and it is the graph cuts x axis at exactly one point or it touches the x axis, in other words now the 2 points a and a dash coincide। अब क्या है, जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरह से है कि x axis को सिर्फ एक पॉइंट पे इनफैक्ट कट कर रहा है, यहाँ कह लीजिए टच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हियर आप देखिए ये इस एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक पॉइंट, इसी तरह से यहाँ पर भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो 2 पॉइंट्स थे a और a डैश, जो पहले अलग अलग पॉइंट्स थे, अब वो कोइंसाइड हो गए, एक के अंदर एक मर्ज हो गए, ओवरलैप हो गए। सो व्हाट वी सी, द 2 पॉइंट्स a एंड a डैश, दे आर कोइंसाइडिंग नाउ and the x coordinate of this point gives 2 equal zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। अब जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों ज़ीरोज़ पहले जो डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, अब वो दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हो गए, सेम हो गए, क्योंकि अब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, या कह लीजिए टेंजेंशियल, यहाँ पर एक्स एक्सिस टेंजेंट के फॉर्म में हो गई है इस पैराबोला के लिए। ठीक है, सो हियर we will have 2 equal zeros and the polynomial ax square plus bx plus c is now factorizable into 2 equal linear factors। अगर आप इनके फैक्टर्स करके देखें तो आपको जो दोनों फैक्टर्स हैं वो सेम मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, और इसीलिए उनके ज़ीरोज़ भी इक्वल होंगे और इसलिए वो एक ही पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो सीधा सीधा कनेक्शन है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टचिंग द एक्स एक्सिस। We take on one more case. The graph does not cut the x-axis. The parabola y equal to ax square plus bx plus c open upwards and remains completely above x-axis if a is greater than 0। आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर पैराबोला जो है x-axis को बिल्कुल टच भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होने चाहिए, ज़रा सा सोचिए आप। Now if a is greater than 0 then this parabola will lie completely above the x axis, और ये opening upwards तो है ही जैसे हमने पहले बात की थी। और अगर a is less than 0 so it will lie completely below the x axis। आप देखो x axis से बिल्कुल नीचे चला गया है, again it is not touching or intersecting the x axis and it is opening downwards। So the parabola opens upwards and remains completely above x axis if a is greater than 0 and the parabola opens downwards and remains completely below x axis if a is less than 0। ठीक है,
and the polynomial is not factorizable here. We have these two examples. Here again this is positive a, the coefficient of x square. तो इसका पैराबोला किस तरह से होगा? ओपनिंग अपवर्ड्स एंड अबव द एक्स एक्सिस. क्योंकि अगर आप इसके फैक्टराइजेशन करना चाहें तो आपको फैक्टराइजेशन कर नहीं पाएंगे. इट इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल हियर. और इसी तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज ए. तो इसका पैराबोला इट विल बी इनवर्स opening downwards and it will lie below the x-axis, because if we try to factorize it we will not be able to factorize. जब factorization नहीं होगा तो हम ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे यहाँ पर x की कोई वैल्यू जो रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे जिसको x की वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. इसका मतलब हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं ढूंढ पा रहे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है. तो रिजल्ट क्या निकला यहाँ पर कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 zeros. इसका मतलब 2 zeros भी हो सकते हैं, 1 0 भी हो सकता है और no 0 भी हो सकता है. 2 zeros कब होंगे? जब एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस तरह से. एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे. इट कैन बी अपवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स, इट कैन बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, related to the value of a. a is greater than 0 or less than 0 accordingly. 1 0 कब होगा? जब ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा सिंगल पॉइंट पे, या इस तरह से पैराबोला व्हेन इट इज टचिंग द x एक्सिस, तब हमारे पास कितने जीरो होंगे? 1 0. और नो 0 का केस कब होगा? जब x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ करें और x एक्सिस को बिल्कुल टच ही ना करे पैराबोला, आइदर इन दिस वे और इन दिस वे. जब पैराबोला x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, तो देन देयर इज नो 0. So now what we can say, that 0 of a polynomial is that point at which it is intersecting the x-axis, or precisely it is its x-coordinate. X-coordinate of that point at which the graph is intersecting the x-axis is called the 0 of a polynomial. उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है. क्लियर टू यू? नाउ वी टेक ऑन ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये कैसा होता है? द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये हमने पढ़ा ही था. और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए इन केस इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. Then its graph always crosses the x-axis at least once and at most thrice. अभी हमने देखा था इस केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, ग्राफ एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है. लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा नहीं है. एट लीस्ट वंस तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में. और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है? 3 टाइम्स एट 3 पॉइंट्स, बिकॉज इट्स डिग्री इज 3. रिमेंबर दिस, दैट इट्स डिग्री इज 3. and a cubic polynomial which is a polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros. अब वो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो उतने ही जीरोज होंगे, क्योंकि जीरोज और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपस में रिलेटेड है, एक ही बात है. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस दोनों एक ही बात है. तो दोनों में 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है एट मोस्ट. एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ. डिग्री 2 का पॉलिनोमियल एट मोस्ट 2 जीरोज है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. जितनी डिग्री होगी
उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ। मैक्सिमम, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जहाँ डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं या 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जहाँ डिग्री 3 है मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम 3 जीरोस पॉसिबल हैं। 3 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। नाउ वी टेक दिस एग्जाम्पल y equal to x cube minus 4x. If we want to plot its graph, let me tell you that plotting the graph of a quadratic polynomial or a cubic polynomial is not there in your course. It is not according to the examination point of view. We are discussing it just to get a clear vision of what the zero of a polynomial is. ठीक है, तो ये प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का एक्चुअली मीनिंग क्या है। वी हैव दिस एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू प्लॉट इट्स ग्राफ, अगेन वी विल हैव टू टेक डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की कई सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी और फिर अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में रखने पर हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएगी जब पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी और कुछ इस तरह से हमें टेबल मिलेगी। ये देखिए हमने x की अलग अलग वैल्यूज़ रखी और करस्पॉन्डिंगली हमें y की वैल्यूज़ मिल गई। अब आप इन वैल्यूज़ पे फोकस कीजिए। -2 0, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x की वैल्यू -2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 zeros आर देयर एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 3। तो डिग्री और ज़ीरोज़ में आप कनेक्शन देख पा रहे हैं, जितनी डिग्री है उतने ही ज़ीरोज़ हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, 3 से कम भी पॉसिबल हैं, 3 भी पॉसिबल हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते इन केस द डिग्री इज़ 3। ठीक है, नाउ इफ़ वी प्लॉट इट्स ग्राफ it will look something like this and you can see here we are having 3 zeros, 3 distinct zeros, 1 2 and 3. 3 points are there at which the graph is intersecting the x-axis. 3 points पे ग्राफ x-axis को intersect कर रहा है और इन points के जो x coordinate हैं वो कहलाएंगे zero of this polynomial। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसके 3 zeros हो गए, -2 0 and 2, और ये और कुछ नहीं, आप देखिए -2 0 here and 2, these are the x coordinates of the points at which the graph is intersecting the x axis। समझ गए आप? इसी तरह से we take 2 more examples। we have this example y equal to x cube, we can plot its graph। कैसे प्लॉट कर सकते हैं आप? x की वैल्यूज़ ले लीजिए और अकॉर्डिंगली y की, अगर x 1 लेते हैं तो y will be 1 cube, it is 1 itself। 2 लेते हैं तो 2 cube it's 8, -2 लेते हैं तो -2 cube it's -8। and if we plot these points here you can see we are getting this graph। this is the point 2,8, this one 2,8, 1 1, and this is the point -2, -8। इस तरह से अगर आप ये पॉइंट्स अब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह का एक कर्व मिलेगा। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात अगर करें तो वी हैव ओनली 1 single ज़ीरो एंड दिस इज़ द पॉइंट ओरिजिन। यहाँ 0 0 पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू 0 लेते हैं x की, 0 क्यूब विल बी 0, तो x को 0 रखने पर y भी 0 मिल रहा है हमें। तो ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट क्या है? 0, 0। तो इसका 0 कितना हुआ? 1। आप देखिए यहाँ पे डिग्री तो 3 है लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 है।
तो जितनी डिग्री है उससे लेस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी पॉसिबल हैं। और वो कैसे डिपेंड करेगा, उसका ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और आप थ्योरेटिकली भी अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल रही है एक्स की, जिससे हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले। तो बेसिक कनेक्शन किस किस में है, फिर से रिकॉल कीजिए। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जिस पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थ्योरेटिकली ये ज़ीरो कैसे मिलता है, एक्स की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, और ये हो गया ग्राफिकल पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कनेक्शन समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह से वी टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। अगेन यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज लीजिए, अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज निकालिए और प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अगेन नाउ इट इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 2 points 1 and 2। तो अब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, इट इज 2। क्यों 2? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स हैं। और आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे एक्स की, तो आपको ऐसी 2 वैल्यूज मिलेंगी जिनसे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए क्या क्या वैल्यूज हैं, एक तो x 0 रख कर देखते हैं और एक x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, क्योंकि यही x कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पॉइंट है 0, 0, 0, 0 और ये पॉइंट है 1, 0। तो इनके x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 1। अब इनको हम ज़रा पॉलिनोमियल में रख के देखते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। x 0 रखेंगे तो 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर, 0 मिल गया हमें। और अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, इट इज़ 1 माइनस 1 0। देखिए आप, तो थ्योरेटिकली ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स x की वो वैल्यूज़ जिनको हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। और ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट जिन पॉइंट्स पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी फाइनली कंक्लूड दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। फर्स्ट थिंग, the graph of a linear polynomial is a straight line and it cuts x axis at exactly one point. लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था ax प्लस b फॉर्म का है। ये इसकी जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो x एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका 0, जो कि होगा माइनस बी बाय ए। हमने पढ़ा था माइनस बी बाई ए इज इट्स 0। ये 0 हो गया। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमें वो पॉइंट देगा जिस पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। देन द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला which cuts x axis at most 2 points. At most means maximum 2 points पे पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। If we have 2 distinct points of intersection, then the zeros will be 2. If it is touching the x axis, then the zeros will be 1. And if it is neither touching nor cutting it, then the number of zeros will be 0. There will be no 0. The graph of a cubic polynomial cuts the x axis at most 3 points. तो आप देखिए डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी होती है 2 क्वाड्रेटिक की, तो ये 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम कट कर सकता है। इसकी डिग्री 3 होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो ये मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। तो अब आप इसको जनरलाइज करें तो अगर हमारे पास कोई n डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो एक्सिस को एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, n पॉइंट्स पे, मैक्सिमम n पॉइंट्स पे। उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, and the x coordinates of these points are the zeros of the polynomial.
ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ और x एक्सिस के, वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। ये कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरह से समझ में आनी ही चाहिए। ठीक, एन nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोज़। अब एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम वो n पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली n पॉइंट्स या n ज़ीरोज़ हो सकते हैं किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो फाइनल लास्ट सिंगल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद x एक्सिस। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और अब इजीली हम, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने पूरी तरह समझ लिया है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, look at the graphs given. Each is the graph of y equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of p of x. So now we have been given a few graphs. हम यहाँ पर ये पता करना है कि number of zeros कितने हैं। तो अभी हमने बात की थी कि number of zeros is actually related to the number of points of intersection of the graph with the x axis. जितने पॉइंट्स पर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे हमारे पास, और ज़ीरो जो है वो इसका x कोऑर्डिनेट होता है, ये तो हमें पता ही चल गया है। अब तो अब आप देखिए यहाँ पर x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ओनली वन सिंगल पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज द ग्राफ, as the graph intersects or cuts the x axis at one point only. समझ गए ना आप कि यहाँ पर ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 होगा। इस केस में आते हैं, आप देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, 1 and 2। 2 पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 2। बिल्कुल सही। वी राइट द आंसर, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 2 एज द ग्राफ cuts the x axis at 2 points. You can see it is cutting the x axis at 2 points. Then we have few more figures. This one, now tell me how many zeros does it have? Yes, you can see the point of intersection, they are 3 points, 1, 2 and 3 points of intersection of the graph with the x axis, तो number of zeros भी 3 होंगे, और हम यहाँ पर easily लिख सकते हैं number of zeros is equal to 3 as the graph is intersecting the x axis at 3 points. जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। Here also just have a look, the point of intersection of graph, it is a straight line. Now can you tell me what type of polynomial is this representing? It is representing a linear polynomial. आप देखिए straight line है तो linear polynomial होगा, और एक ही point of intersection है दिस वन, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होने चाहिए बताइए आप? येस, इट शुड बी इक्वल टू 1 एज द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x axis at
one point only. Got it? We have some more figures with us. This one. Now tell me, what is the number of points of intersection? Here only one point is there where the graph, the parabola, is touching the x-axis. So the number of zeros should be 1 only. So we write it here. Number of zeros is 1, as the graph is touching the x-axis at 1 point. And so its number of zeros is 1. Here you can see how many points are there. Count them. They are 1, then 2, 3 and 4. 4 points of intersection of the graph with x-axis. So the number of zeros should be equal to 4, as the graph cuts, let me write it once again, the x-axis at 4 points. Clear to you? Now we take on your exercise 2.1. It is very easy and similar questions are there. Again we have been given the graphs of y equal to p of x for some polynomials p of x, and we have to find the number of zeros in each case. Now again we have these figures with us, these graphs. First one, can you tell me the number of zeros? You can see it is a straight line, this one, and it is not intersecting the x-axis at all. Neither it is touching it. x-axis को ना तो ये कट कर रही है और ना ही टच कर रही है. तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए? It should be 0, or we should say no zeros, as the graph does not intersect or touch the x-axis. It is neither touching nor intersecting the x-axis, so the number of zeros is 0, or we can say there are no zeros. Then in this case, find the number of points where the graph is intersecting the x-axis. Only one single point, and so the number of zeros should be 1, as the graph cuts the x-axis at 1 point. Got it? Then we have these two figures. Again we have to count the points where the graph is intersecting the x-axis. 1, 2 and 3. In this case 1 and 2. So we can easily now write the number of zeros. In this case it is equal to 3, and in this case it is equal to 2. You can easily write it as the graph cuts the x-axis at 3 points. And here also, as the graph cuts the x-axis at 2 points. Okay, then we have this figure. Again count the number of points of intersection of the graph and the x-axis. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 points, and in this case 1 point of intersection and 2 points of
touching the x-axis. Here in this case, these 2 points we are getting when the graph is just touching the x-axis. It is not intersecting at these 2 points. So now we can easily write the number of zeros. Number of zeros in this case, it will be 4. You can write it as the graph cuts the x-axis at 4 points. Shall I write it? Let us write to get the complete answer. As the graph cuts the x-axis at 4 points. And in this case, number of zeros is 3, as the graph cuts the x-axis at 1 point and touches it at 2 points. Clear? Now with this, your exercise 2.1 is complete, and now I hope that it is very much clear to you that what is the zero of a polynomial. Theoretically, it is the value of x for which we get the polynomial's value as 0, and geometrically it means the x coordinate of the point of intersection of the graph of the polynomial with x-axis. I hope it is very much clear to you. In our next class, we will be looking up at the relationship between the coefficients and the zeros of a polynomial. Till then, keep watching. Goodbye.